In this class, we are going to study about the nutrition in Protista. So, as we had earlier discussed, that this Protista kingdom is a very diverse kingdom. There are too many types of different organisms with too many different type of properties. So in this type of nutrition, we cannot determine that there is only single type of nutrition in Protista. So almost all type of nutrition that is possible in case of various organisms are found in the kingdom Protista. So there are different categories in kingdom Protista, and according to our NCERT, we have 5 categories, and that is chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and the fifth and the last is the protozoans. So in all these 5 categories, various different types of nutrition are present. So in this type of nutrition, we are going to study how many total types of nutrition are present in the case of Protista. So the first type of nutrition in Protista is obviously just like plants. So in Protista, we have a category which is called as Protestan alga. So in this category, we normally place 3 organisms or 3 categories of organisms. So in Protestan alga, we have the chrysophytes, that is the diatoms and the golden alga, and apart from that, we also have the dinoflagellates and also the euglenoids. So these 3 types of organisms have plant-like properties, that is they have chlorophyll, they synthesize their own food. So therefore the first 3 categories, that is the chrysophytes, dinoflagellates and euglenoids, these categories normally show autotrophic nutrition, or it is also called as holophytic nutrition. Holophytic means something like plant or through photosynthesis. So the first type of nutrition that is observed in the Protista is the case with the Protestan alga, and that is the autotrophic or photosynthetic nutrition. So the first category is the autotrophic nutrition. So it occurs through photosynthesis, and we know that what is the product of photosynthesis, that is glucose, and from glucose different materials will be synthesized. So it obviously occurs in the Protestan alga or plant-like alga. This is what is meant by the Protestan alga. So diatoms belong to the category of chrysophytes, then we have the dinoflagellates, and at last we have euglenoids. So in euglenoids, we have an organism which is called as euglena. So these organisms behave like plants, or these organisms show the properties of plants in terms of photosynthesis. So these organisms can synthesize their own food, and this type of nutrition is called as the autotrophic or holophytic type of nutrition. Now the other type, that is the holozoic or saprophytic or mixotrophic or pinocytic or parasitic, these all are types of different heterotrophic nutrition. So the heterotrophic nutrition varies from organism to organism and also the category to category. So the first type of auto or the heterotrophic type of nutrition that we have to study is this, that is the holozoic nutrition. So this holozoic nutrition means that animal-like nutrition. So in this holozoic nutrition, the nutrition that will be occurring will be just like animals. So animals ingest food. Here also the protist will ingest food, and apart from that, the other organisms which they cannot ingest, they will ingest in parts. So either the organism will predate the new or small organisms, and also if the organism is bigger than the organism, then the organism will be eaten in parts. So this is what is meant by the holozoic nutrition. So it involves predation of small organisms. तो यहाँ पर जो छोटे organisms होते हैं उन्हें ये directly खा सकता है. तो that is meant by predation of small organisms and also fragments of larger organisms. यानी कि अगर यहाँ पर जिस organism का parts को खाना है वो बड़े size का है, तो उसे छोटे parts में यहाँ पर ये खाएगा. This is what is meant by holozoic nutrition. तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है ये तो एनिमल्स के केस में पाया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज सेड एज होलोजोइक. सो जोइक मींस लाइक एनिमल्स और समथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स. सो दिस इज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन.
अब यहां पर क्या होता है कि जो फूड अंदर लिया गया है उस फूड को फैगोसोम में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज दैट फूड विच इज बीइंग इंजेस्टेड इज टेकन इनटू द फैगोसोम एंड फ्रॉम देयर इट विल कंबाइन विद द लाइसोसोम एंजाइम्स एंड द डाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स. So the enzymes of lysosome, so you might have studied in your younger classes that lysosome is called as suicide bags of the cell. So this lysosome contains a lot of hydrolytic enzymes. So the food that has been taken in the phagosome are hydrolyzed with the help of enzymes of lysosome. So these lysosome enzymes will digest the food inside something called as food vacuole. So the food will not be digested freely in the cytoplasm, but after the food that has been digested in the food vacuole, the finer particles or the smaller, simpler components of food will be released in the cytoplasm, but the digestion of food will not take place freely in the cytoplasm. So this is what is occurring over here. So digestion occurs through enzymes of lysosome inside digestive vacuoles. तो यहाँ पर उनके अंदर यानी कि वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम के एंजाइम्स फूड के साथ कंबाइन करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट. एंड नाउ इट अकर्स मोस्टली इन प्रोटोजोन्स. तो हमने देखा है कि ये जो है होलोजोइक है. जोइक का मतलब है एनिमल्स की तरह, और हमें यहाँ पर जो पढ़ना है इसी प्रोटिस्टा के कैटेगरी में एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं प्रोटोजोन्स. सो इन प्रोटोजोन्स को एनिमल्स का एंसेस्टर माना जाता है. एनिमल्स का एंसेस्टर है यानी कि एनिमल की तरह इसमें प्रॉपर्टी भी होंगे. तो एनिमल्स का ही तो प्रॉपर्टी है कि फूड को इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करना. तो यही तो प्रोटोजोन्स में हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स. लेकिन मेनली जो इस तरह का न्यूट्रिशन है इट अकर्स इन द केस ऑफ protozoans, but apart from the protozoans there are some exceptional dinoflagellates and a few euglena type organisms which do this, that is some dinoflagellates and euglenoids. तो dinoflagellates और euglenoids में there are some exceptions in which the nutrition is holozoic, but apart from that this holozoic nutrition normally takes place with the case of this protozoans. Now we come to the third type, and that is the saprotrophic. So it is normally in every case saprotrophic nutrition means nutrition from dead and decaying organisms. So here also here also the digestion will take place or the absorption of nutrients will take place from dead or decaying matter. तो यहां पर क्या होगा कि जो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है या जो डीके कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर, वहां पर ये जो प्रोटिस्ट होंगे अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर देंगे. यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के बाहर फूड का डाइजेशन हो रहा है और उसके बाद वहां पर जो फूड का डाइजेशन हुआ है ऑर्गेनिज्म पर, तो उस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब किया जाएगा. तो यहां पर सैप्रोट्रोफिक में डायरेक्टली फूड को नहीं लेकर डाइजेस्ट किया गया. हमने देखा था होलोजोइक में क्या हो रहा था कि फूड को पहले इंजेस्ट किया गया, सेल के अंदर लाने के बाद उसे डाइजेस्ट किया गया. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि फूड को बाहर ही डाइजेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि सेल बाहर एंजाइम को सिक्रीट कर रहा है. जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उसे बाहर सिक्रीट कर दे रहा है उसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर, और वो एंजाइम जब उसको डाइजेस्ट कर देगा तो यहां पर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को सीधा अंदर लिया जाएगा. यानी कि सैप्रोट्रोफिक में सेल के अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है. जो यूकैरियोटिक सेल है यहां पर प्रोटिस्टा का, उसके अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके बाहर डाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन एंजाइम सिक्रीटेड बाय द प्रोटिस्ट. सो दिस इज द टाइप दैट इज कॉल्ड एज दिस सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. तो यहां पर एब्जॉर्प्शन किया जाएगा किसका, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स का, और ये मेनली यहां पर एंजाइम सिक्रीट करके हो रहा है. ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर से एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं प्रोटिस्टा के बाहर बॉडी से एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं फूड पर और फिर इन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा. अब ये जो टाइप है ये मेनली पाया जाता है स्लाइम मोल्ड्स में. तो मोल्ड नॉर्मली फंजाई के लिए यूज किया जाता है. तो हमने पहले ही पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में कि ये जो प्रोटिस्ट होते हैं इसमें बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है. तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं
ये फंजाई की तरह होते हैं। तो फंजाई की तरह होने की वजह से ये फंजाई वाली प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। तो फंजाई भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं नॉर्मली, और ये भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऑटोट्रोफिक में इसका न्यूट्रिशन प्लांट की तरह है, होलोजोइक में इसका न्यूट्रिशन एनिमल की तरह है, और यहां पर सैप्रोट्रोफिक में इसका न्यूट्रिशन फंजाई की तरह है। तो हमने देखा था पहले कि प्रोटिस्टा से ही ये सारे किंगडम्स निकले हैं, यानी कि फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। तो यहां पर हम उसका लिंक देख सकते हैं कि फंजाई के किसी कैटेगरी में वहां पर प्लांट की तरह न्यूट्रिशन है, किसी में एनिमल की तरह और किसी में फंजाई की तरह है। तो इसीलिए प्रोटिस्टा को लिंक किंगडम या लिंकिंग किंगडम कहा जाता है, जो कि सारे ऑर्गेनिज्म से प्रॉपर्टी इसमें सिमिलर होते हैं। तो ये जो टाइप का न्यूट्रिशन है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द kingdom fungi, and that is why these are also regarded as ancestors of fungi। तो ये जो स्लाइम मोड्स जिनके अंदर ये टाइप का न्यूट्रिशन होता है, इन्हें हम कंसिडर करते हैं फंजाई के एंसेस्टर, या फिर फंजाई की तरह ही इनका प्रॉपर्टी होता है। नाउ वी कम टू द फोर्थ टाइप, दैट इज मिक्सोट्रोपिक। तो मिक्सो का मतलब क्या है, यहां पर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होंगे। तो यहां पर ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है, यहां पर हेटेरोट्रोफिक भी हो सकता है। तो ये नॉर्मली पाया जाता है यूग्लेनॉइड्स में। अब ये जो मिक्सोट्रोपिक वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अपना फूड तो सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपना फूड को बाहर से भी लेते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा फूड सिंथेसाइज किया जाएगा, थोड़ा सा फूड बाहर से लिया जाएगा। तो यहां पर अगर फूड सिंथेसाइज हो रहा है तो ये ऑटोट्रोफिक हो गया, लेकिन अगर फूड बाहर से लिया जा रहा है तो वो हो गया होलोजोइक। तो यहां पर दोनों टाइप का न्यूट्रिशन पाया जा रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं मिक्सोट्रोपिक। सो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अ पार्ट ऑफ फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड द रिमेनिंग पार्ट इज सिंथेसाइज्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ये ऑटोट्रोफिक वाला कैटेगरी हो गया, और ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड तो ये होलोजोइक की तरह हो गया। तो ये जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं, ये प्लांट और एनिमल्स के बीच का लिंक की तरह होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड भी सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये एक यूग्लेनॉइड्स हो गया प्लांट की तरह। ये यूग्लेनॉइड्स बाहर से फूड को भी ले सकते हैं, बाहर से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं, तो ये तो हो गया एनिमल की तरह। तो यूग्लेनॉइड्स में प्लांट और एनिमल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है। नाउ वी कम टू द अदर टाइप एंड दैट इज पिनोसाइटोसिस। तो पिनो का मतलब होता है सेल के अंदर किसी चीज को ड्रिंक करना, यानी कि टू ड्रिंक होता है। तो पिनोसाइटोसिस में रेडीमेड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है लिक्विड मीडियम में। तो एब्जॉर्ब यहां भी हो रहा था, दैट इज इन द केस ऑफ सैप्रोट्रोफिक में भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन यहां पर सीधा सेल ड्रिंक करता है फ्लूइड, यानी कि काफी ज्यादा रैपिडली भी होता है। यहां पर स्लोली एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहां पर सीधा फ्लूइड का इनटेक हो जाता है बॉडी के अंदर। तो यहां पर रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं मीडियम के अंदर, और वहां पर वो जो मीडियम में डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, सेल सीधा उसे ड्रिंक कर लेगा, जस्ट लाइक वी ड्रिंक वाटर। तो यहां पर प्रोटिस्टा लिक्विड मीडियम में सीधा फ्लूइड्स को इनटेक कर लेगा। तो यहां पे डिसॉल्व्ड रहते हैं ऑर्गेनिक और सॉल्ट्स। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और सॉल्ट्स जो कि डिसॉल्व्ड हैं, यहां पर सेल उसे सीधा एब्जॉर्ब कर नहीं करेगा बल्कि ड्रिंक कर देगा। नाउ दिस अकर्स इन द केस ऑफ अमीबा। अमीबा में इस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है बहुत कॉमनली। तो हमें मेन एग्जांपल्स याद रखने हैं कि प्रोटिस्टा के किस कैटेगरी में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है। सो नाउ वी हैव कम टू द फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट एंड दैट इज द पैरासिटिक। और आप लोगों को पता है कि पैरासाइट का मतलब क्या होता है। पैरासिटिक वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करते हैं और उन्हें हार्म करते हैं। Those type of nutrition or such type of organisms are called as पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे हेयर में भी लाइस होता है, वो भी एक पैरासाइट है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं, वो भी पैरासिटिक होते हैं। तो यहां पर हम प्रोटिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और ऐसे प्रोटिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो कि पैरासिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स पर होंगे जो कि उन्हें डिजीज कॉज करते हैं। अब ह्यूमंस में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसे कहते हैं मलेरिया। तो मलेरिया कॉज करने वाले को जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो यहां पर प्लाज्मोडियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके अलावा
ट्राइको, यहाँ इसके अलावा यहाँ पे बैलेंटीडियम है या एंटामीबा है, या फिर और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ट्राइपैनोसोमा। तो ट्राइपैनोसोमा में भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, दैट इज पैरासिटिक होते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ऑब्टेन हो रहा था, लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है कि यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है। दैट इज इस केस में यहां पर जो न्यूट्रिशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और सैप्रोट्रोफिक में डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है। दोनों ही एक तरह के हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। तो इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है बैलेंटीडियम, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम। तो ये जो बैलेंटीडियम है ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एक बीमारी कॉज करता है जिसे हम कहते हैं बिकोलाई। तो इसलिए हम कहते हैं बैलेंटीडियम कोलाई, इसे कहते हैं हम इकोलाई। इकोलाई एक और बैक्टीरिया को भी कहा जाता है जिसे कहते हैं एशेरिकिया कोलाई। लेकिन ये दूसरा है, यहां पर एंटामीबा दूसरा है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका भी होता है और एंटामीबा के और भी डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। तो ये जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज कॉज करता है जिसे कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री। तो डिसेंट्री नॉर्मली इसकी वजह से होता है जिसमें कि स्टूल्स के साथ ब्लीडिंग भी होता है। तो ऑब्वियसली ये सारे ऑर्गेनिज्म हमें बहुत डिजीजेस करते हैं, हमें बहुत हार्म करते हैं। और जो तीसरा है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ह्यूमंस में एक बहुत कॉमन बीमारी करता है जिसे हम कहते हैं मलेरिया। तो इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल है जैसे कि लेशमेनिया हो जाएगा, वो भी ह्यूमंस में एक और बीमारी करता है जिसे कहते हैं कालाजार। अदरवाइज उसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि ट्राइपैनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस नाम का बीमारी कॉज करता है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स मेनली प्रोटोजोन्स होते हैं। तो ये जो टाइप है पैरासिटिक, ये मेनली यहाँ पर प्रोटोजोन्स पाए जाएंगे। तो ये जो बैलेंटीडियम, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम है, दीज आर आल्सो बिलोंगिंग टू द कैटेगरी विच कॉल्ड एज प्रोटोजोन्स। तो ये बेसिकली एनिमल्स के एंसेस्टर हैं या एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें बीमारी करते हैं या फिर अदर स्पीशीज डिफरेंट अदर स्पीशीज में बीमारी कॉज करते हैं। नाउ जो सबसे लास्ट वाला टाइप का न्यूट्रिशन है वो है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स का ऐसा एसोसिएशन है जिसकी वजह से दोनों को बेनिफिट मिलता है। तो उस तरह के एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि लाइकेंस होते हैं, माइकोराइजा है, फिग एंड वेस्प है। तो अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल है, लेकिन हमें प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल है ट्राइकोनिम्फा। ये एक प्रोटिस्ट है और ये टर्माइट्स में जो कि एक इंसेक्ट होता है और कॉमनली बहुत ही कॉमन है ये टर्माइट्स। हमारे जो घर में फर्नीचर्स होते हैं उसे हम टर्माइट से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो क्योंकि टर्माइट्स हमारे फर्नीचर्स में जो भी वुड के मटेरियल्स होते हैं जैसे कि हमारे विंडो पैनल्स हो गए या फिर डोर्स हो गए, टेबल्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, तो इन सभी में जो वुड होता है उसे डिस्ट्रॉय करता है ये टर्माइट। नाउ आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि वुड जो मेनली मटेरियल का बना होता है उसे कहते हैं सेल्यूलोज। तो ये जो टर्माइट है डायरेक्टली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए इस टर्माइट के एलिमेंट्री कैनाल में रहता है ये ट्राइकोनिम्फा। तो ट्राइकोनिम्फा अगर बॉडी के अंदर है या कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर है तो उसे कहते हैं एंडो। तो ये बॉडी के अंदर है किसके? टर्माइट के एलिमेंट्री कैनाल में। तो जो टर्माइट वुड को खाता है तो उस वुड में है सेल्यूलोज और उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ट्राइकोनिम्फा के पास होता है। तो भले ही टर्माइट वुड को खा रहा है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, डाइजेस्ट करेगा ट्राइकोनिम्फा, क्योंकि ये वो एंजाइम सिक्रीट करेगा जिससे कि सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता है वुड का और उससे क्या बनेगा? शुगर बनेगा या फिर स्टार्च बना सकता है सेल। तो इस वजह से जो हमारा टर्माइट है यहाँ पर, वो टर्माइट को क्या मिल गया? शुगर मिल गया, स्टार्च मिल गया, और लाइकवाइज ट्राइकोनिम्फा को भी शेल्टर मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, होस्ट मिल गया। तो दोनों को बेनिफिट है। तो यहाँ पे टर्माइट को रेडीमेड फूड मिल गया क्योंकि ट्राइकोनिम्फा ने उसे एंजाइम से बना दिया स्टार्च या फिर शुगर, और ट्राइकोनिम्फा को शेल्टर मिल गया, फूड मिल गया, होस्ट मिल गया, वो सारी चीजें मिल गई। तो दोनों का बेनिफिट हो गया। इस तरह का एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक। और अदर कैटेगरीज में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे सिम्बायोटिक रिलेशन हमें पढ़ने हैं।
खासकर जो इकोलॉजी चैप्टर होगा आपका 12th क्लास में, वहां पे हम एक पूरा सेक्शन देखेंगे जहां पे हम म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में आपस में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि इट हैज एंजाइम्स दैट कन्वर्ट cellulose of wood into sugars and starch, तो it is a mutual beneficial association of organisms। तो ये तो हर कैटेगरी के लिए कॉमन बात हो गई। तो ये जो सिम्बायोटिक है ये म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन होगा, और ये हम कहीं भी बात करें तो म्यूचुअलिज्म का मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता करना है कि प्रोटिस्टा में कौन से एग्जाम्पल है, तो उसका एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ट्राइकोनिम्फा, क्योंकि हम टर्माइट्स हमारे डे टू डे लाइफ में एक बहुत कॉमन एक पेस्ट होते हैं जो कि हमारे जो भी वुडन मटेरियल्स होते हैं उसे डिस्ट्रॉय करते हैं अपने एक्शन की वजह से। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा। तो इसमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट हर तरह का न्यूट्रिशन पाया जा रहा है, चाहे सिम्बायोटिक, चाहे पैरासिटिक, या प्लांट की तरह ऑटोट्रोपिक, एनिमल की तरह होलोजोइक, या फिर फंजाई की तरह सैप्रोट्रोपिक, या डिफरेंट टाइप वाले मिक्सोट्रोपिक, फिर पिनोसाइटोसिस, फिर पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। तो ऑलमोस्ट जितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं वो सभी पाए जाते हैं इस प्रोटिस्टा में, क्योंकि प्रोटिस्टा किंगडम सबसे ज्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है। इसके कुछ ऑर्गेनिज्म किसी कैटेगरी से मैच करेंगे तो दूसरे ऑर्गेनिज्म किसी और कैटेगरी से मैच करेंगे, और इतने टाइप के वेरिएशन की वजह से इनका बाउंड्री डिफाइंड ही नहीं है। एक इंसान किसी प्रोटिस्ट को प्लांट कंसीडर करेगा तो दूसरा इंसान उसे प्रोटिस्ट कंसीडर करेगा। एक साइंटिस्ट किसी प्रोटिस्ट को एनिमल कंसीडर कर सकता है तो वो कोई और साइंटिस्ट उसको प्रोटिस्ट कंसीडर करेगा। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, और उसके कारण यही सब फीचर्स हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें इतने टाइप के न्यूट्रिशन है कि कोई एनिमल, कोई फंजाई, कोई प्लांट से मैच करता है। इसीलिए इस किंगडम के जो बाउंड्रीज हैं वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस न्यूट्रिशन को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि कैसे और कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर।